दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज के कुल 11 वार्डों के प्रेसिडेंट में राशन सामग्री प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जी के नेतृत्व में लगभग 40 से 50 लोगों में राशन वितरण किया गया। रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से की बातचीत। जेके नगर स्थित नवनीत क्लब द्वारा लॉकडाउन के तहत बीते 44 दिनों से लोगों को दोपहर का भोजन खिलाया जा रहा है। रानीगंज की समाज सेविका जया बजाज द्वारा करीब 400 जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री प्रदान की गई। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बर्धमान जिला सभापति मेयर जितेंद्र तिवारी की अनुप्रेरणा से रानीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस की नेत्री मानसी तिवारी के निर्देशानुसार शहर अध्यक्ष आलोक बोस एवं समाज सेवी मलय मुखर्जी की सहयोगिता से रानीगंज के कुल 11 वार्डों के प्रेसिडेंट में राशन सामग्री प्रदान की गई। पश्चिम बर्धमान जिला सभापति मेयर जितेंद्र तिवारी की अनुप्रेरणा से रानीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस की नेत्री मानसी तिवारी के निर्देशानुसार शहर अध्यक्ष आलोक बोस एवं समाज सेवी मलय मुखर्जी की सहयोगिता से रानीगंज के कुल 11 वार्डों के प्रेसिडेंट में राशन सामग्री प्रदान की गई। इन राशन सामग्री में 5 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल कुमड़ा, 60 किलो दाल, 1.5 क्विंटल आलू दी गई ताकि वे अपने वार्ड के जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर सके। इसमें समाज सेवी अर्जुन उपाध्याय, संतोष सिंह, बापी चक्रवर्ती, साथ ही साथ टीएमसीपी के छात्र परिषद के सुबो भट्टाचार्य, आरजू मुख्तार, तिथास बैनर्जी, सुमित मंडल इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हुए। स्वर्गीय वैद्यनाथ मुखर्जी एवं गौरीशंकर मुखर्जी एवं तार जे उत्तरसूरी माननीय मलय मुखर्जी नामटा किन्तु आमादेर काछे नतून नय। मलय मुखर्जी जेभावे समाज सेवा करे जाच्छेन हयतो एक इतिहास तैरी होबे। যাই হোক, আমরা এখানে ডেকে নেব আমাদের আজকের রানীগঞ্জের টাউন প্রেসিডেন্ট মাননীয় অলোক ঘোষ। তো আমাদের গত পৌরসভার যে নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচনে আমাকে দুর্গাপুরে আমাদের একটা মিটিং হয়। সেখানে তৎকালীন অবজারভার ছিলেন অরূপ বিশ্বাস এবং সমস্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নেতৃত্ববর্গ ছিলেন। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সভাপতি মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি উনি ছিলেন। সেখানে উনি আমাকে বলেছিলেন যে রানীগঞ্জের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে সাহায্য করার জন্য বিভিন্নভাবে। তো আমি তখন থেকে রানীগঞ্জের সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং এখনও আমাকে সভাপতি তথা মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, আমাদের কর্নেল, ওনারাও আমাকে বলেছিলেন যে রানীগঞ্জের পৌরসভা নির্বাচন আসছে, তোমাকে একটু দেখতে হবে, তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একটা কাজ করতে। তো তাদের সেই অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমি রানীগঞ্জের সঙ্গে যেমন ছিলাম সেভাবেই আরেকটু গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যাই এবং সেই কারণেই এই লকডাউন পরিস্থিতিতে আমাদের একটা ট্রাস্ট আছে। আমার স্বর্গীয় দাদু বৈদ্যনাথ মুখার্জি এবং স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর মুখার্জি আমার বাবা, ওনাদের নামে একটা সেবা প্রতিষ্ঠান আছে অর্ধগ্রামে। সেখান থেকে বিভিন্ন সময় মানুষদেরকে সাহায্য করা। এই মানে শীতের সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক আশাক দিয়ে থাকি, কম্বল দিয়ে থাকি, বর্ষায় তিরপল, এই ধরনের নানা রকম সুযোগ সুবিধা সেখান থেকে মানুষকে দেওয়া হয়। তো সেখান থেকে সেই ট্রাস্ট থেকে আমরা মন্ডল ব্লকে 100 কুইন্টাল চাল, 20 কুইন্টাল মুসুরি এবং 5 টন করে কুমড়ো এবং আলু 50 টন করে 50 কুইন্টাল করে আলু আমরা দিয়েছি এবং সেম মন্ডলে যতটাই দেওয়া হয়েছে সেম আমরা রানীগঞ্জেও দিয়েছি। তো সেইটা আজকে আমাদের এখানে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা এসছেন। খুব অসুবিধা হয় সেগুলো আপনারা প্রশাসনকে জানাবেন। প্রশাসন থেকেও নম্বর সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রেশনের যেগুলো চাল দিচ্ছে এগুলো যারা আছে যে ওয়ার্ডের কর্মীরা তারা একটু দেখবেন যে কারোর যেন অসুবিধে না হয়। দু একটা ওয়ার্ডে হয়েছিল, আমরা যেহেতু গেছিলাম সমস্ত সেটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নাহলে প্রতিনিধিত্বকে ফোন করবেন, নাহলে বিদ্যুৎকে ফোন করবেন যাতে চালটা যাতে ভালো চাল আসছে, ভালো চাল যেন পায়, রেশনগুলো যাতে ঠিকমতো পায়। আর যাদের রেশন কার্ড নেই বা নতুন অ্যাপ্লাই করেছে তাদের উদ্দেশ্য বলি যে তাদের একটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে,
সমস্ত পেশেন্টের কাছে আছে, আপনারা সেই ওয়ার্ড অফিসে যোগাযোগ করবেন এবং সেখান থেকে তাদের নামটা দিয়ে দেবেন, তারা ওই ফর্মটা ফিল আপ করে জমা দেবেন। তাহলে একটা পরবর্তীকালে টোকেন পাবে, সেই টোকেনটা দেখালে আমরা মালটা তুলতে পারি। আর আজকে এইগুলো দিয়েছে আমাদের মিডিয়া ব্লকের সভাপতি মলয়কে ধন্যবাদ জানাই যে এগুলো সাহায্য করার জন্য উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সবসময় আছি রানীগঞ্জ ব্লকের সাথে, অন্যান্য ব্লকও করছি। তো যাই হোক, আমরা রানীগঞ্জ ব্লকে থাকি, রানীগঞ্জ ব্লকের কথাই বলছি, এইভাবে করছি। আর এইখানে আমরা 11টা ওয়ার্ডকে প্রথমে দিচ্ছি, আমরা দিচ্ছি 5 কুইন্টাল করে চাল পার ওয়ার্ডে, আমরা দিচ্ছি আলু দিচ্ছি 1.5 কুইন্টাল, আর কুমড়ো দিচ্ছি, কুমড়োটা তো ঠিকমতো ওজন করে না, কিছু কম বেশি হবে 1 কেজি করে, কেন সেইগুলো আমরা দিচ্ছি। আর ডাল দিচ্ছি, এগুলো আমরা দিচ্ছি সরকার সেখান থেকে। তো প্রতিটি ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা আছে, তারা নিয়ে যাবে, তারা সেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করবে। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গা আছে, যেমন সেখানে হয়তো অনেক বেশি দরকার আছে, সেখানে কিন্তু আমরা ঠিকমতো মানে অতটা মাল দিতে পারছি না, সেখানে আমরা কিছু কিছু দেবো। যেমন যেখানে যেখানে ক্রাইসিস আছে সেই সব জায়গায় দেবো, কিছু সংস্থা আছে তাদের দেবো, এবং এই যে কনজারভেন্সি স্টাফ, এগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ইয়ে করা হচ্ছে, হেল্প করা হচ্ছে। আজকে করেছে আমাদের 34 নম্বর ওয়ার্ডে জ্যোতিষ সিং, সোমনাথ, এরা একটা করেছে কনজারভেন্সি স্টাফকে, তো এটা খুব ভালো। এটা এবার বিভিন্ন रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 88 के खैरबांध इलाके में लगभग 40 से 50 लोगों में राशन वितरण किया गया। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 88 के खैरबांध इलाके में लगभग 40 से 50 लोगों में राशन वितरण किया गया। लॉकडाउन की परिस्थिति में अब तक संसदीय क्षेत्र के लगभग 10 से 11 हजार लोगों में यह सहायता प्रदान की गई एवं रानीगंज नगर में करीब 900 से अधिक लोगों को यह सहायता दी गई, जिसमें सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी, शक्ति केंद्र प्रमुख दीपक सिंह, पिंटू बर्मन, छोटू बाद्यकर, सोमनाथ दास, राकेश बाद्यकर सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज आसनसोल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी के तरफ से राशन सेवा का जो है 88 नंबर वार्ड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो कि लगातार पिछले लॉकडाउन होने के बाद से अभी तक पूरे संसदीय क्षेत्र में ये काम माननीय बाबुल सुप्रियो जी के तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर कितने को डिस्ट्रीब्यूट किया शुरू से लेकर आज तक? अभी तक कुल अगर बोलेंगे तो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 11 साढ़े 10-11 हज़ार के आसपास जो है लोगों को राशन सेवा दी गई है। और जिसमें अगर रानीगंज नगर की बात करें तो रानीगंज नगर की तरफ से लगभग 900 से अधिक लोगों को ये सेवा दी गई है। अच्छा, आज क्या क्या सामग्री, रेशन सामग्री दिए हैं आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट किए? दाल है, चावल है, आलू है। आपका नाम परिचय? दिनेश सोनी, रानीगंज नगर उपाध्यक्ष, और साथ ही में हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में दायित्व। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के स्कूलपाड़ा स्थित ज्ञान भारती स्कूल में प्रति माह की फीस एवं पुनः दाखिला की फीस में वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से बातचीत की। रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल में प्रति माह की फीस एवं पुनः दाखिला की फीस में वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल में जाकर वहां के प्रधानाध्यापक से बातचीत की। अभिभावकों का कहना है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के कामकाज बंद हैं एवं पैसों की काफी किल्लत है। ऐसे में स्कूल द्वारा फीस वृद्धि करने से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। अतः इन सभी विषयों पर अभिभावकों द्वारा प्रधानाध्यापक से चर्चा की गई। इस विषय में प्रधानाध्यापक अमित साव का कहना है इस तरह के निर्णय स्कूल के सभी कमेटी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं एवं वे इस विषय में कमेटी के सदस्यों से बातचीत कर ही किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे। आज स्कूल परिसर के बाहर मतलब क्या कर रहे हो? ये हमारे स्कूल में फीस बढ़ा दिया गया है, तो इसी के लिए हम लोग बोलने आए हैं कि अभी तो एक तो ऊपर से लॉकडाउन किया गया है, यहाँ कोरोना वायरस है और यहाँ पे फीस स्कूल में बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ स्कूल में पहले क्या फीस था? पहले हम लोग का फीस था 900 रुपये, 9 क्लास में। अभी कितना ले रहा? अभी तो 1350 रुपये कर दिया। अच्छा, किस चीज़ की ये पता किया है आप लोग? वही तो पूछ रहे हैं। क्या नाम हो आपका? सतीश रावण। हाँ, सतीश रावण, कौन सा क्लास? 9 क्लास, स्कूल? ज्ञान भारती स्कूल।
का फीस मनमानी पड़ रहा है। पढ़ाई बंद है 1.5 महीना से 2 महीना से, और फीस लगातार अप्रैल से जोड़ के लोग मांग रहे हैं, और इस लॉकबंदी में किसी का ड्यूटी नहीं है, तो लोग कहाँ से फीस भरेगा? अच्छा, पहले क्या फीस था और अभी क्या हो? पहले फीस था 400 रुपया KG4 का। अच्छा, अभी KG2 का अभी हो गया है 500 550। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। आपका बच्चा का नाम? वैष्णवी। बाहर आप लोग जो इकट्ठा है, मतलब क्या कारण से? हम लोग इसी कारण से जो रीएडमिशन है वो रीएडमिशन भी बढ़ा दिया गया है। अच्छा, और मंथली जो है मंथली भी बढ़ा दिया गया, इसलिए हम लोग इकट्ठा यहाँ जमा हुए हैं। प्रिंसिपल से हम लोग सर से पूछना चाहते हैं कि भैया इस लॉकडाउन में इस तरह का सर कैसे हम लोग को इस टाइम में हम लोग को ऊपर इतना बोझा डाल दीजिएगा, तो हम लोग कैसे चल। आपका बच्चा कौन क्लास में है? 9th क्लास में। अच्छा, क्या फीस था पहले, अभी कितना हुआ? पहले 900 रुपये फीस था, अभी 1300 रुपये कर दर, एक भी 400 रुपये पड़ जा रहा है। क्या नाम हो आपका बच्चा का? दानिश खान। कौन सा क्लास? 9th क्लास। आपका नाम परिचय? शमीन। स्कूल है, मनमानी की तरह से फीस ले रहा है। बच्चा लोग का रीएडमिशन में इतना पैसा, जो स्कूल क्लास नहीं हो रहा है उसका फीस, हर चीज़ फीस के ऊपर ही है ये सारा, और क्या है, बस सब इसीलिए जमा। अच्छा, पहले क्या फीस था और अभी क्या बढ़ोतरी हुआ फीस में? पहले फीस था 8 में कितना था, और अभी सुनने में आ रहा है 1350, अभी 1350 का। अच्छा, किस लिए इतना बढ़ोतरी आप लोग पूछे नहीं? बस ये इसी कारण जानना है हम लोग को कि ये कारण क्या है, ये माजरा क्या है, जो हम लोग को तो पता चले अचानक इतना है। आपका बच्चा कौन क्लास में है? 9 में गया है। अच्छा, 9 का फीस ये है। क्या नाम है बच्चे का? मीत शर्मा। प्रिंसिपल से बात किया तो क्या नहीं किया, बस अब हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या बात होता है। क्या नाम है आपका? बबीता शर्मा। देखिए, पहला बात तो गार्जियन मेरे पास कोई अभी तक आया नहीं है फीस लेकर ऐसा कोई बात करने के लिए। और ये पूरा मैटर जो है, हमको लगता है कि ये हमारे स्कूल जो अथॉरिटी है हम लोगों के हाथ में नहीं है। टीचर के हाथ में, प्रिंसिपल के हाथ में जो था, हम लोगों के हाथ में पढ़ाई जो है वो हम लोग करा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो शायद आपको पता भी होगा जो ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, इसके लिए हम लोग को सर्वर के लिए पैसा भी देना पड़ा है, ठीक है, और उसमें खर्चा भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग गार्जियन से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी हम लोग नहीं मांगे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का कोई भविष्य खराब ना हो, पढ़ाई खराब ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस। पहला बात देखिए, एक बात बता रहे, वो जो बोल रहे ठीक बोल रहे हैं कि उनका भी असुविधा है, और ये सरकारी स्कूल भी हम लोगों का है। तो सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी यहाँ पर 100 स्टाफ है। अब स्कूल मान लीजिए अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं देगी, अगर गार्जियन पेमेंट हम लोग को नहीं करेंगे तो स्कूल भी हम लोग को पेमेंट नहीं देगी। तो स्कूल में 100 स्टाफ है, वो घर तो ये ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई है। और अभी भी किसी से हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले फीस दीजिए या एडमिशन कराइए, एडमिशन लेने बोला है ना। हम लोगों ने फीस फीस के बारे में कुछ बोले हैं सर, उन लोगों का कहना है, हम लोग अथॉरिटी को अभी भी हम लोग बताए हैं, जो स्कूल अथॉरिटी है, जिनके पास मान लीजिए स्कूल का पावर है, वो लोग अभी फीस घटाएंगे या फीस नहीं लेंगे, ये उनके हाथ में है। अभी तक स्कूल के तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है कि बोला गया है कि आप लोग एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने बोलेंगे तब ना आप बोलिएगा भाई ये हाँ हमको फीस बढ़ गया है या फीस घटाइए। उन लोगों का कहना है रीएडमिशन एंड नॉर्मल फीस जो है वो भी बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, रीएडमिशन जो भी मान लीजिए फीस का मैटर जो है वो सारा मैनेजमेंट देखेगी, वो हमारे हाथों पे कैसे है। आपका नाम परिचय सर? हाँ, आपका नाम परिचय? मेरा नाम अमित साहब, प्रिंसिपल ज्ञानवर्ती स्कूल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जेके नगर स्थित नवनीत क्लब द्वारा लॉकडाउन के तहत बीते 44 दिनों से जेके नगर एवं आसपास के अंचल के लोगों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जा रहा है। जेके नगर स्थित नवनीत क्लब द्वारा लॉकडाउन के तहत बीते 44 दिनों से जेके नगर एवं आसपास के अंचल के लोगों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जा रहा है। सोमवार आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी द्वारा जेके नगर अंचल के बाद कोठी तथा अन्य अंचल में राशन सामग्री प्रदान किए जाने के दौरान नवनीत क्लब के द्वारा लगातार भोजन बांटे जाने की खबर पाकर वे क्लब में पहुंचे, जिससे क्लब के सदस्यों में भारी उत्साह देखा गया एवं विधायक तापस बनर्जी ने अपने हाथों से लोगों को भोजन प्रदान किया। यहाँ रोजाना लगभग 500 से 600 लोगों को भोजन प्रदान की जा रही है। यह भोजन बाद कोठी, जेमेरी ग्राम, जेके नगर बाजार, चलबलपुर, ओल्ड माइंस, बोगड़ा नीचे धौड़ा, जीवना पाड़ा क्षेत्र के ऐसे लोगों को प्रदान की जा रही है जो कि रोज कमाने खाने वाले हैं, पर लॉकडाउन के दौरान इस वक्त 2 वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कार्य में संस्था के सचिव गिरिराज बर्मन, सुधीर सिंह, नगदी प्रसाद, टार्जन बर्मन, मुरारी बर्मन, चंदन बर्मन, चंदन साव,
दिलीप अंसारी इत्यादि की अहम भूमिका रही। दूसरी ओर सोमवार को भोजन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य दिवेंदु भगत, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, टीएमसी कार्यकर्ता अर्जुन सिंह, मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी के प्रबंधक बीके सिंह, अजित गोस्वामी, सुरेंद्र धर इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बहुत दिन से यहाँ पर जो अभी लॉकडाउन का चलते जो बहुत से आदमी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से आदमी का तकलीफ हो रहा है, खास करके गरीब आदमी लोग को, जिन लोगों के पास पूंजी बोल के कुछ नहीं रहता, रोज कमाने वाले रोज खाने वाले। तो ये लोग कहने का ऐसा बहुत खाली लोग चुने हैं जिसका घर में चूल्हा नहीं जलता, यही सब घर का आदमी को बुला के लोग खिलाते हैं, कुछ घर में भेज भी रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम है। अगर इस घड़ी में हम लोग सब मुँह घुमा के रहे तब सही नहीं होगा। ये समाज का जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग समाज से नहीं है, समाज का काम करते हैं, समाज में रहते हैं। यही एक तो ये लोग का मैंने खूबी है कि समाज का लिहाज का दिन लोग निकला है, आदमी लोग इतना बड़ा काम किया है। पेट से बड़ा कुछ नहीं होता है इंसान का, खाना उसका बड़ा हिस्सा होता है, खाना अल्लाह होता है। तो यही वो लोग उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत बड़ा काम है। इस क्लब में आए हैं, इसके पहले भी आए हैं इस क्लब में। इस क्लब के हर सदस्य मिलकर लोगों को सहयोग कर रहे हैं। सब समय यहाँ सचेतन के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और उसके साथ ज़रूरतमंद लोग जिन लोग हैं उन लोग को खाना भी खिला रहे हैं और घर घर में खाना आप पहुंचा भी दे रहे हैं। आज इस क्लब का सदस्य और बहुत से स्वेच्छासेवी संस्था सब जगह काम कर रहे हैं। और क्या ये सबसे बड़ा खुशी होता है कि आज हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ममता बनर्जी का आदर्श में अनुप्राणित होकर इस तरह का कार्य करते हुए आज युवा संप्रदाय को देखा जा रहा है। युवा संप्रदाय सब समय अपने आप को लोगों को बीच में, लोगों को सेवा में अपने आप को निमज्जित किए हैं। यहाँ पर आए हैं लायंस क्लब ऑफ आसनसोल नॉर्थ से, ठीक है ना। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फ्री में जो खाना दिया जा रहा है सब गरीब आदमी को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या प्रोग्राम था? आज हम लोग का जो प्रोग्राम है, आज हम लोग को जो है खीर पूड़ी सब्जी का दे रहे हैं। हम लोग जो नवनीत क्लब है, हम लोग जो है आज कम से कम 50 साल से समाज सेवा में है। और ये जो हम लोग समाज सेवा जो दे रहे हैं, पहला हम लोग को बहुत खुशी का बात है कि हमारे सीनियर जो है हमारे क्लब के त्यागी आदमी गिरिराज बर्मन, गोविंद साहब, ये लोग जो हैं, और हमारे हैं चंदन बर्मन है, राजेश बर्मन है, जितने भी हम लोग को जो मेंबर है सब पूरा बढ़ चढ़ करके कोरोना वायरस का कोई भी डर नहीं देखा कि क्या होगा, अपने ऊपर सब रिस्क ले करके। और आज 43वां दिन 44वां दिन खाना चल रहा है और हम लोग जो है इसी तरह से खाना खिला रहे हैं और खिलाते रहेंगे। हम लोग के और भी सहयोगी हैं, अर्जुन भाई है, विनोद नोनिया है, तापस दा है, सब मिल करके अपना इस क्लब को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग गिरजा में और खिलाएंगे लास्ट करेंगे। अब इसके लिए तो अर्जुन भाई बोलेगा और खिलाया जाएगा। जेके नगर से प्रकाश रजक की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज हथिया तालाब की समाज सेविका जया बजाज द्वारा करीब 400 जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण की गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
रानीगंज एवं जामुरिया माकपा द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए राज्य के मजदूरों को अपने राज्य में वापस लाने के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के पास मांग करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस तथा बोरो ऑफिस कार्यालयों में डेपुटेशन दिया गया। প্রচেষ্টা প্রকল্প বন্ধ করা চলবে না প্রচেষ্টা প্রকল্প বন্ধ করে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করা মানছি না। কদিন আগেই প্রচেষ্টা বলে একটি প্রকল্প যা আমাদের CI2 দীর্ঘদিনের দাবি ছিল লকডাউনের পর, যেহেতু CI2 অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের হচ্ছে যে রোজগার একদম বন্ধ হয়ে গেছে, আর অসংগঠিত শিল্পের একটা বড় অংশ যারা দিন আনে দিন খায়, আমাদের দাবি ছিল যে এদের ক্ষেত্রে এককালীন প্রতি মাসে 5,000 টাকা, পরবর্তী ক্ষেত্রে 7,000 টাকা আমরা দাবি করেছি। তো যাই হোক, পরবর্তী ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলা এই প্রকল্প প্রচেষ্টা বলে নাম দিয়ে 1,000 টাকা দেবে এককালীন বছরে, সেরকম একটা প্রতিশ্রুতি তিনি দেন এবং কাগজে বিবৃতি দেন, ফর্মও বাজারে আমরা পাই। সরকার চলছে কলকাতা থেকে এইখান পর্যন্ত, সবাই হচ্ছে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ হচ্ছে মানুষের কাছে জবাবদিহি করবে না, কিন্তু মোটা টাকা বেতনে এনারা সব চাকরি করেন। আমার এটাও বলার কথা যে এইভাবে কতদিন চালাবেন আপনি অফিস থেকে পালিয়ে কিনা? আপনার সরকারের নির্দেশ হচ্ছে যে আপনারা ঘর থেকে বা অন্য জায়গায় হচ্ছে যে আপনারা চালাবেন। আমরা বিডিও অফিসে, আমরা কাল ডিএম অফিসেও দেখলাম খাদ্য নিয়ে আলোচনা হলো। আমরা বললাম যারা কুপন পায়নি তাদের কী হবে? যারা পুরনো কার্ড যারা দরখাস্ত করেছিল, আপনি বলেছিলেন সবাইকে হচ্ছে যে কুপন দেওয়া হবে, অন্তত 60% লোক কুপন পায়নি। ডিএম অবাক হয়ে গেল, তাই নাকি? আমি নতুন এসেছি, অবাক হয়ে গেল। ডিপার্টমেন্ট অফিসাররা মাথা নিচু করে বসে রইল। আরে পাবে কি পাবে না আমরা দাবি করলাম, পাবে কি পাবে না পরিষ্কার বলুন, পাবে কি পাবে না? কোনো উত্তর নেই। সবটাই আমরা বুঝতে পারছি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল যাদের হাতে কুপন তুলে দেওয়া হচ্ছে, তারা ইচ্ছে মতো দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর অফিসাররা, এই ধরনের অফিসার, আরও বড় অফিসার, তারা নিশ্চুপ, তারা কিছু জানে না। আমরা এর প্রতিবাদ করে এসেছি কালকে। আমরা এর সঙ্গে যেটা দাবি করেছি যে এই সময় রমজান মাস চলছে, প্রতি বছর হচ্ছে যে রমজানের জন্য স্পেশাল রেশন देवा है, छोला दाल सूजी। चिट्ठी किया गया है, राज्य की सरकार को चिट्ठी किया है, और देखिए कैसा तमाशा कर रही है इस बोर्ड का चेयरमैन। उनसे सुंदर क्या कोई नहीं है? उनसे सुंदर क्या रानीगंज में कोई चेयरमैन नहीं था? क्या सोच के चेयरमैन बनाए थे कि आज हर मोहल्ला में चेयरमैन जाएगी, खाने का खुराकी का व्यवस्था करेगी, मजदूर जो फंसे हैं ममता बनर्जी को गुहार लगाएगी। आज से लेके 12-13 को डेपुटेशन यहाँ पर दिए हैं। निर्लज्ज प्रशासन है, और ऐसा चेयरमैन को हम लोग धिक्कार जनाते हैं। आज के যদি কোনো পুরুষ চেয়ারম্যান থাকতো ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসতো, महिला चेयरमैन दायित्वशील CI2 संगठन, हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है, ये अन्याय है, और रानीगंज के लोगों का अपमान है कि चेयरमैन घर में बैठ के लॉकडाउन मना रही है और जनता भूख से बिलख रहा है। प्रवासी मजदूर की चित्कार पूरे देश में गुज रही है। आज दूसरे राज्य सरकार सीताराम येचुरी मोदी सरकार को चिट्ठी किए थे, दूसरी राज्य सरकारें कोशिश कर रही है, और ममता दीदी को वो गोला पालने से फुर्सत मिलेगा तब ना। ममता दीदी प्रचार में लगी हुई है, और हमारा राज्य का जो लोग बाहर में काम करने गया था, पढ़ने गया था, चिकित्सा करने गया था, वो बोल रहा আমাদের কি হবে, আমরা বাড়ি ফিরতে চাই, আমাদের বাড়ি ফেরাও। और इसीलिए हम CI2 आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज तथा आसनसोल चैम्बर के प्रतिनिधि एवं पश्चिम बर्धमान के अतिरिक्त जिला शासक शुभेंदु विश्वास व्यवसायियों की समस्याओं को जानने हेतु व्यवसायियों से मिले। चैम्बर ऑफ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन को लेकर हम लोगों ने एडीएम श्री शुभेंदु बसु के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी, जिसमें इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंडस्ट्रीज से समान अन्य समस्याएं रही हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए उन्होंने बताया कि चूँकि आज एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होने वाली है, उस पर आधारित होकर हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। और वैसे ई पास के द्वारा व्यवस्था की गई है, अगर कोई रिजेक्शन आता है तो आप लोग फिर से अप्लाई कीजिए, और अगर कोई वैसी समस्या आती है तो हमारे सामने रखिए, हम लोग चेष्टा करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई जो पास आप लोगों को मिला है, व्यापारी हो या इंडस्ट्री वाले हो, उस पास को आधार बनाकर अपने सतह अपने पेड पे अपने कर्मचारियों के लिए एक पास की व्यवस्था कर दें और उसी को पास मान लिया जाएगा, चाहे वो एंट्री डिस्ट्रिक्ट से ही क्यों नहीं हो। रिजेक्शन ऑफ पासेस के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे कि एक धारणा बन रही है कि डीएम ऑफिस से ई पास रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से जारी किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को फिर वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कुछ दिन वेट कीजिए। पॉलिसी चूँकि हर कुछ दिन में चेंज हो रही है, तो कुछ अच्छी बातें इसमें उभर के आएगी, तब इन सब कार्यों का हम लोग सही ढंग से काम कर पाएंगे। रानीगंज की विशेष रूप से एक प्रॉब्लम रही है हमारे व्यापारियों की कि डिपार्टमेंट से और प्रशासन से बोला जा रहा है कि पंजाबी मोड़ में खाली करने को लेकर व्यापारियों की गाड़ियाँ जो है, उसके लिए हम लोगों ने उनसे जब आवेदन किया तो उनका कहना था कि प्रशासन व्यापारियों के साथ मिलकर काम करेगा और जो भी समस्याएं हैं उनको सही ढंग से करने के लिए तत्पर है, ताकि व्यापारी कहीं ना कहीं विमुख नहीं हो और सप्लाई और आपूर्ति चेन बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने जितने भी सुझाव हैं रिटर्न में भेजने के लिए हम लोगों ने उनको कहा है। और एक सुझाव रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रहा है कि जितने भी पेट्रोल पंप जहाँ की वॉशिंग की सुविधाएं हैं, वहाँ पर वॉशिंग के बदले सैनिटाइजेशन के रूप में अगर लिक्विड मिक्स करके अगर उनका सैनिटाइज कर दिया जाए बाहर से आने वाली गाड़ियों को, तो ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी, जिसका उन्होंने मान लिया है। और उन्होंने कहा है कि जो उनके पेट्रोल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनका नंबर देंगे, हम लोग जल्दी उनको नंबर देंगे, ताकि इस तरह की व्यवस्था की जा सके, तो हर शहर में हम लोग बाहर से आने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज कर पाएंगे। थैंक यू। आपका नाम बोलिए। आपका नाम? संदीप भलोटिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंघानिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया। देखते पाइले कि চেম্বারে কোনো ব্যালেন্স শিট আছে কি না আছে, আমার কাছে কোনো পৌঁছে না এখনো ব্যালেন্স শিট। 2 বছর থেকে আমি এই জন্য লড়াই লড়ছি, কিন্তু কোনো শোনাই হচ্ছে না। কথা আলোচনা হলো, ও বললো হিসাব নাই। হিসাব তো ভাই যা আছে তোমার কাছেই আছে, আর আমাদের যা খরচা আছে সেটা আমাদের কোনো খরচা তো এখন করি নাই আমরা, যা করোনা সংক্রান্ত খরচা সেগুলো যখন হিসাব আসবে তখন পেয়ে যাবে। বাদ বাকি যে স্যালারি আমরা দিচ্ছি তোমার মারফতেই দিচ্ছি, তোমার কাছেই জমা আছে টাকা। বলে হ্যাঁ ওগুলো তো আমি দিচ্ছি। জামুড়িয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এই কোভিড-19 করোনা ক্রাইসিসের সময় যেভাবে কাজে এগিয়ে এসছে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে, মানুষের জন্যে, সে তো আর চেম্বারে কোনো ফান্ড নাই। ফান্ড তো কোথা থেকে পেতে হবে। আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে, বিভিন্ন আমাদের যিনি ট্রেডার বন্ধু আছে, মেম্বার আছে, তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, কমিটমেন্ট পেয়েছি। আর সেই হিসাবে আমরা মালপত্র আনিয়ে বিলি করলাম, সেভাবে আমরা স্যানিটাইজেশন করলাম বা অন্যান্য কাজ যেগুলো হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি হিসাবেই করা হচ্ছে। আমরা এখন অবধি কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পাই নাই, টাকা এখন আমাদের কাছে কোনো আসেও নেই। আসলে যখন আসবে আপনারা হিসাব পেয়ে যাবেন, জানতে পারবেন। আর যদি এই অভিযোগ কেউ লাগাচ্ছে যে আমরা টাকা নিয়ে এসেছি খরচা করছি, তো যারা অভিযোগ লাগাচ্ছে তারা একটাও ইন্ডাস্ট্রি কিংবা একটাও দোকানদার কিংবা একটাও মেম্বার কাছ থেকে আমাদের প্রুফ করে দেখ যে আমি টাকা দিয়েছি, তাহলে আমি আজকে এক্ষুনি ইস্তিফা দিয়ে দেবো এখান থেকে।
ঠিক নামটা বলে প্লাস এবারে আমরাও বলি, কিছু কিছু আমাদের বক্তব্য আছে। একটা ভিডিও সার্কুলেট হচ্ছে করোনা ক্রাইসিসের সময় জামুরিয়া চেম্বার থেকে প্রায় 42টা গাড়ির জন্য পাস আমরা দেওয়া করেছিলাম, যাতে এসেন্সিয়াল কমোডিটি সাপ্লাই অব্যাহত থাকতে পারে। কেন উনিও তো রাত্রে 10টার সময় থানাতে গিয়েছিলেন, আমরাই তো ওর পাস বানিয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজে ফোন করে ওনাকে বললেন, বড়বাবুকে, না স্যার উনি আমাদের মেম্বার আছেন আর ট্রেডার আছেন, উনি বিজনেসম্যান। যদি আমাদের মধ্যে আমাদের ওনার প্রতি এটা জেলেসি থাকতো কিংবা কিছু থাকতো, তাহলে আমরা কিছু বলতাম, আমরা ফোনই ধরতাম নাই। আমরা এইসব পার্সিয়ালিটি করি না। ছোট দোকানদার হোক, বড় দোকানদার হোক, মেম্বার হোক না হোক, ছোট গাড়ি চালক হোক, বড় গাড়ি চালক হোক, আমরা সবার জন্য আছি। আমরা তো বহুত এরকম লোকের পাস করিয়েছি যারা আমাদের মেম্বার নাই, খেটে খাওয়া মানুষ। আগে নিজের সমালোচনা করুন এরা, যে আমরা কি জন্য হেরেছি, কি জন্য হারছি, কি জন্য 3 বছর কমপ্লিট আমি করি নাই, 3বারই রিজাইন দিলাম, কি জন্য আমাকে গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত নিতে হলো। আজকে আমরা যখন ছাড়লাম এখানে, যে করোনা ক্রাইসিসের সময় আমাদের চেম্বারে কিছু যোগদান দেয়, তারা কোনো কাজে আসে নাই, যোগদান দেয় নাই, শ্রম যোগদান, ফিজিক্যাল যোগদান, মনিটারি যোগদান, আর বসে বাড়িতে বড় বড় কথা বললে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স ফিল করে একটা চেম্বারকে বদনাম করার সাজিশ, যেখানে আজকে অন্যান্য চেম্বার প্রশাসন সবাই বলছে যে জামুরিয়া চেম্বার নো ডাউট ডুইং ভেরি গুড এক্সেলেন্ট জব, সেটা এরা ডাইজেস্ট করতে পারছে না বলে এই কথাগুলো হচ্ছে মনে করছি। এবার চেম্বার যে প্রোগ্রামগুলো লেয় হাতে, যে প্রোগ্রামের আমরা সমস্ত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা দিয়ে দিই, জানিয়ে দিই কে কে দেখেছে কে না দেখেছে। এটাও আমাদের কাছে আছে, রেকর্ড আছে, অন রেকর্ড, যে আমরা যে কী প্রোগ্রাম হলো, কী প্রোগ্রাম দিলাম, আর কারা কারা দেখলো, কোটা সময় দেখলো। তারপরেও যদি কেউ না আসে, নিজের যোগদান না দেয়, পার্টিসিপেট না করে, আপনি 3টা 4টা প্রোগ্রামে না এলে মানুষের মধ্যে একটা ইনফিনিটি কমপ্লেক্স ধরে যায়, যে না আমি যাই নাই, এবার যাবো তো কি বলবে, থাক পরে দেখবো, থাক পরে দেখবো, এই করে করে নিজেকে যদি নিজেই অপেক্ষিত মনে করে, তাতে আমাদের তো করার কিছু নেই। ধরুন আমাদেরকে একটা ইন্ডাস্ট্রি কিংবা একটা মেম্বার কিংবা একটা লোক বলে দিল আমি 5,000 টাকা দেবো কিংবা 50,000 টাকা দেবো কিংবা 5 লাখ টাকা দেবো, আমরা ধরে নিয়েছি যে আপনি বলে দিয়েছেন, তার মানে আমরা টাকা পেয়ে গেছি কিংবা পেয়ে যাব। এটা তো জেনে আপনার মানে খুশি হওয়া দরকার যে জামুরিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজে যারা পদে যারা বসে আছে, তাদের মার্কেটে গুডউইল আছে, যে তারা ধার আনতে পারে, তাদের ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপেবল আছে, নিজের পকেট থেকে টাকা লাগায় জিনিস আনাতে পারে এখন। তো এটা তো কোনো বড় কথা নাই। আমরা কোনোদিন এটা দেখি না যে ওইখান থেকে টাকা আসবে তাহলে 20 টাকা বাঁচায় 100 টাকার মধ্যে 80 টাকা খরচা করব। আমরা দেখি ও 100 টাকা বলেছে, তা আমরা 1 টাকা আগে খরচা করব, তারপরে টাকা আনাবো। আমাদের সেই ক্যাপাসিটি রয়েছে যথেষ্ট। ঠিক। আজকে সকালেই দেখলাম একটা ভিডিও সার্কুলেট হচ্ছে, আমাদের একজন এক্স প্রেসিডেন্ট, যিনি অবশ্যই গতবারে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার হেরেও গেছেন। তো এবার উনি বলছেন যে কি করে এরা কাজ কেউ করে না, চলে আসে। তাহলে আগে এটা সমালোচনা করতে হবে, তাহলে আগে উনি নিজের সমালোচনা করুন যে উনি কি করে হারলেন। উনি 3বার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, 3বার রিজাইন দিলেন, কি কারণ ছিল? একটাও টার্ম পুরো করলেন না। আসানসোলে একটা মিটিংয়ে উনি জামুরিয়া চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গিয়েছিলেন, তার টাকা পর্যন্ত, গাড়ির ভাড়া পর্যন্ত চেম্বার কাছ থেকে নিয়েছে। হারার পরে যদি কোনো লোক এটাও বলে যে কি করে এরা চলে আসে কিছু না করেও, তাহলে আমি মনে করছি যে মেম্বাররা ভোটে আমাদেরকে জিতিয়ে, আমাদের উপরে বিশ্বাস রেখে আমাদেরকে এই পদে বস করাচ্ছে, তাদের তো অপমান করা। এই অপমান করার অধিকার বাকি কে দিয়েছে? চেম্বার অফ কমার্সের যে ট্রেজারার ইস্তিফা দিল, সে অভিযোগ লাগিয়ে দিল, এটা বলা ঠিক হবে না। কারণটা কি আছে, আমাদের কাছে যে লেটার উনি দিয়েছেন সেটা আপনাদেরকেও দিয়েছে, ওতে লেখা আছে যে আমি কোনো পদভার গ্রহণ করিনি এখনো অবধি, আমি পদভার পাইনি। আর একটা দিয়েছে যে আমি নিজেকে এখানে উপেক্ষিত মনে করছি। এই দুটা অভিযোগ বলতে পারেন লাগিয়ে উনি দিয়েছেন। তাহলে প্রথম অভিযোগের করতে তো আমি বলে দিতে পারি আপনাকে যে পদভার আমি পাইনি, গ্রহণ করিনি, এটা যদি বলে তাহলে এটা বলে আমার মনে হচ্ছে ভুল হবে। কারণটা আছে কি, আজ 1 বছর থেকে আমাদের চেম্বারের যে স্টাফ আছে, ম্যানেজার আছে, তার স্যালারি তো ওখান থেকেই পেমেন্ট হচ্ছে, টাকা ওর কাছেই রাখা আছে, এখনও অবধি ওর কাছে রাখা আছে, প্লাস বিজলি বিল যাবতীয় যা খরচ হয়েছে, আমাদের বছর করে খরচ হয়েছে, খরচই দিয়েছে। তা যদি ট্রেজারার না থাকে আর পদভার পায় নাই, তাহলে কি করে দিচ্ছে? जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। हमारा पता है नेशनल मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9332673300, 9434313567। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अति आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरो सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, इंडोस्कोपी और क्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, অ্যান্ড আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট। ब्रेक के बाद मैं अलका श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत सकदोड़िया के दक्षिणेश्वर मंडल की दुकान पर अवैध रूप से शराब के मूल्यों में 70% की वृद्धि कर शराब की बिक्री की जा रही है। আপনি কি বলবেন? বিক্রি তো আমি করিনি, খদ্দের এসে আমাকে জানিয়ে যেমন আসছে জামা করছে, তো এবার আমি ওদিকে কি বলবো? তো খদ্দের তো এমনি লোকে ভাবছে তো এটা মদ বিক্রি করছে এদিকে, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এদিকে মদ কি একটাও দিইনি, এদিকে আসছে সব ঘুরে যাচ্ছে। একটুকু গেট খুললেই খদ্দের আসছে, বুঝি যে দাদা মালদেন মালদেন, একটু বাইরে বেরোলে হাট বাজার গেলেও আমাকে ধরে বসছে। যারা আপনাদের কাছ থেকে মাল নিয়ে গেছে তারা বলছে যে প্রিন্ট রেট রয়েছে তার থেকে 70% আপনি বেশি নিয়েছেন এই রেটে মালটা, কি বলবেন? 70% বেশি আপনি নিয়েছেন? না না, আমাদের তো 30% দাম বেড়েইছে, তো 30%ই নিচ্ছে। সেটা নিচ্ছেন? 30% আমাদেরকে নিতে ইয়ে হয়েছে, ওখান থেকে এখন মানে অর্ডার নিচ্ছেন ওইটা তো দাম নিতে, তো
তো নতুন মাল ঢুকলেই 30% আমরা চালু করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম দক্ষিণেশ্বর মন্ডল। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण वार्ड नंबर 4 ग्रामीण मंडल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सोमवार को सामूहिक विकास विभाग के लिए एक विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। রাজ্য জুড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে আজকে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে প্রত্যেক ভিডিওতে। এটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে রেশন দুর্নীতির ব্যাপারগুলো যেগুলো আছে প্রত্যেকটা কন্ট্রোলে যে হিসাবে কেন্দ্র সরকারের এসছে সেই হিসাবে তো জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে না বা দিচ্ছে না। এই জন্য আমরা ভিডিওকে একটা স্মারকলিপি জমা দিচ্ছি এবং এর সাথে সাথে আমাদের এলাকায় এখন মানে লকডাউনটা একদম মানাই হচ্ছে না। কিছু কিছু এমন এলাকা আছে যেগুলো নিয়ে মহিলা বালি প্রচুর পরিমাণে চলছে, কিন্তু লকডাউন সেভাবে মারছে এবং বাইরের থেকে লেবার আসছে, বাইরের থেকে লেবারও আসছে, বাইরের থেকে গাড়ি আসছে, সেই গাড়ি দিয়ে ময়লা টয়লা লোড হচ্ছে। এই দাবি নিয়ে আমাদের বিক্ষোভ আজকে করা হয়েছে। আমার নাম সঞ্জীব গোপ, আসানসোল সাউথ মন্ডল পরিষদ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन की परिस्थिति में जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे सफाई कर्मियों को रानीगंज के रामबगान में आस्था संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। हम लोग आज आस्था तरफ से यहाँ पर हम लोग का ये रामबगान कॉलोनी में एक संगठन है। तो ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये हम लोग का ये समाज सेवा के लिए हम लोग एक संगठन है जो आस्था तरफ से इनका नाम दिया गया आस्था। तो आज हम लोग ये जो कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व जो परेशान है, इसमें हम लोग को कुछ स्वास्थ्य हम लोग का जो कुछ सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी वालों को दिन रात वो लोग मेहनत करके हम लोग को गांव शहर पर साफ सुथरा रखता है। इसके लिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग उन लोगों का सम्मान में थोड़ा सा उन लोगों के लिए कुछ भेंट किए हैं। कितने लोगों को आज आप लोगों ने सम्मानित किया? यहाँ पर 17-18 आदमी हम लोग का इस इलाका में जो लोग था उन लोग को तरफ से बोला गया था आप लोग को जितना आदमी हम लोग को बोलिए, तो उन लोग बोला हम लोग का इस इलाका में 17 आदमी का है, तो हम लोग 17 आदमी को किसी बैनर के तले काम किए हैं या फिर रामबगान निवासियों की आस्था तरफ से कर रहे हैं। आस्था हम लोग का ये रामबगान में संगठन है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश भगत। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। विभिन्न राज्यों से अपने परिवार को वापस लाने के लिए या विभिन्न राज्यों में श्रमिक को अपने घर वापस भेजने हेतु जिला शासक शुभेंदु विश्वास के कार्यालय में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। भाई यहाँ पर जमा होगा भाई, फिर बोला था पहले बार बोला हाँ। ऐसे तो गाड़ी फोर व्हीलर में 2 आदमी ना परमिशन मिल रहा है, हम लोग 5 थे। আপনারা এসেছেন আজকে এখানে আমরা এসেছি আজকে ওই ই পাসের ব্যাপারে, যেটা সরকার থেকে 1070 একটা হেল্পলাইন দিয়েছিল, সেখানে বলেছিল ডিএম অফিস থেকে এডিএম অফিস থেকে একটা পাস দেওয়া হবে। সেই জন্য আমরা সবাই এসেছি এখানে। মানে কিসের নিয়ে? যারা আমাদের রিলেটিভরা ফেসে আছে, কেউ স্টুডেন্ট ফেসে আছে, কেউ পেশেন্ট ফেসে আছে, অনেক রকমের ফেসে আছে, তারা নিজের নিজের বাড়ি যাবে আর যাবে ওই ব্যাপারে, তার পাশের ব্যাপারে এসছে। छपरा वहाँ पर मेरा वाइफ और लड़का फंसा हुआ है, गया था घूमने के लिए, तो उनको लाने के लिए परमिशन कराने के लिए आए हैं। सुबह 9 बजे से आए हैं, कोई बोलता है वहाँ लाइन लगाओ, कभी कोई बोलता है यहाँ लाइन लगाओ,
ये तो यही माने अवस्था है, क्या बोला जाए। तो अभी फिलहाल आप लोग को क्या बोला गया? अभी बोला गया है कि आप लोग का जो एप्लीकेशन है पूरा आप लोग जमा दीजिए यहाँ पर, इसके बाद आप लोगों को फिर खबर दिया जाए। जबकि इन लोगों को कम से कम लिख देना चाहिए, एप्लीकेशन जमा लेके इन लोगों को टाइम दे देना चाहिए कि इस टाइम में आके आप लोग परमिशन ले जाइए। लेकिन अब बोलता है कि आके आप लोग पता कीजिएगा, क्या पता करेगा? इन लोगों को तो कम से कम ये होना चाहिए कि हाँ इतना समय में आके आप लोग ले जाइएगा परमिशन, टाइम दे देना चाहिए इन लोगों को। तो इसको मेरे थ्रू, आपके पेपर के थ्रू यदि एडीएम साहब को ये बात बोला जाए जो जितना आदमी का कागज़ रिसीव आप लेते हैं उनको साथ में संगे संगे उनको टाइम दे दीजिए, जो इतना टाइम में आप आके अपना परमिशन ले जाइए। इसलिए पब्लिक को हरासमेंट नहीं होगा, पब्लिक अपना ठीक से आके ले जाए। इतना खड़ा है, आपका नाम बोल दीजिए। धूप में खड़ा है इतना हम लोग। आपका नाम बोल दीजिए। अनिल सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन की वजह से बांकुड़ा में सामाजिक दूरी को निभाते हुए 2 जिलों के वर वधू ने मंदिर में बिना बारात के ही शादी रचाई। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান বা কোনো জমায়েত করা যাবে না, কিন্তু বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান যদি কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান থাকে 30-40 জন মানুষের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এবং এই বিয়েটা আমাদের 3 নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা মৌসুমী বাউরি, পিতা শঙ্কর বাউরি। এই মৌসুমী বাউরির সাথে আমাদের কাশীপুর, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা গ্রামে ছেলে আমাদের সদাই বাউরি, পিতা অনিল বাউরি, তার সাথে 2 মাস আগে একটা সম্বন্ধ হয়েছিল এবং সেই সম্বন্ধের ডেটও ঠিক তারিখ ধরা ছিল এবং সেই মতো আমরা আজকে আমাদের এই এলাকার থেকে কম মানুষ সংখ্যককে নিয়ে তাদের বাড়ির থেকেও, ছেলেপক্ষের বাড়িতেও 3 জন এসেছে, মেয়ে পক্ষ বাড়িতেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 2 জনই এখানে আছে। আমরা সেইভাবে আজকে বিয়ের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান আমরা সম্পন্ন করছি এবং যে আমাদের রীতিনীতি আছে নিমন্ত্রণ করা, কিন্তু এখানে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। শুধু কুটুম আত্মীয় স্বজন যারা আছে 20-25 জন তাদেরই একটু ছোট্ট করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেটা সমস্ত কিছু আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং সরকারি যা নিয়ম কানুন, হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, দেখতে পাচ্ছেন আপনার পাত্রপাত্রীকেও মাস্ক পরানো হয়েছে। ছেলে বাবা বা মেয়ের যে বিয়েতে বসেছে তারাও মাস্ক ব্যবহার করছে এবং সেভাবেই আমরা সরকারি রীতিনীতিতেই বিয়েটা আজকে এখানে আমাদের রামতলিগড়া যে মনসা মেলা আছে সেই মনসা মেলাতে আমাদের যে বিয়ের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তারা আবার ছেলেপক্ষ আবার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। আমি আজকে যে বিয়েটা হচ্ছে পাত্রপাত্রী 2 জনকেই ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করব তাদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখে কাটে, তারা যেন ভালো থাকে, এটুকুই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रानीगंज के कुल 11 वार्डों के प्रेसिडेंट में राशन सामग्री प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जी के नेतृत्व में लगभग 40 से 50 लोगों में राशन वितरण किया गया। रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से की बातचीत। जेके नगर स्थित नवनीत क्लब द्वारा लॉकडाउन के तहत बीते 44 दिनों से लोगों को दोपहर का भोजन खिलाया जा रहा है। रानीगंज की समाज सेविका जया बजाज द्वारा करीब 400 जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री प्रदान की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।